Hello everyone, I'm Rishu and today we have with us Priya Sharma ma'am who is an ENTC graduate from AIT and currently she runs the NGO Nanni Khwab. She sponsors the education of 45 kids every year, right from their education to all their social and emotional needs to providing one-to-one mentorship and guidance to them. She is also a solo traveler and she has traveled all over the world. She also writes about her travel experiences. You can check out on trippygirl.co.in. And we welcome you, ma'am, Priya Sharma, ma'am, to Thank AIT you. Talks. Thanks. Thanks, guys, for such nice words. And to add to that, ma'am loves to travel, and you can check her Instagram, which we'll provide in the description below. Like Mm. I really loved your profile, ma'am. It is so colorful and uh, you don't know, but I am a very I want to travel so many places, but I still feel there is like something is stopping me, like this corporate job 9 to 5 or something. So I'm like getting motivated from you. So I will ask you about that, how you do that. Yeah, So we'll start. get into Sure. travel Yeah, afterwards. how you do that, like how you manage, that is a big thing. So starting with the first question, ma'am. So you started out with AIT and then you are now working for an corporate job for a big MNC now, and as well as you started your own NGO. So what is the phase, like how were you in AIT and now how do you feel you are at what position you are right now, and what has developed over that period of time and what has changed basically, and what is the thing that changed the whole path? So what were those factors? Just wanted to ask, what was that journey about? Okay, okay. I'll start with AIT only. Actually, I would like to start with 12th. How Oh, I was sure, in, how definitely was I, that. yeah, yeah. How I was in school. So as we all guys know that in army we have to shift 3 years after 3 years, places after 3 years, right? तो उस समय यार बहुत ऐसा होता था कि ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे. तो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट कि ज्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करती थी, ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि ऐसा लगता था कि दोस्त बन के होगा क्या, छूट ही जाएंगे. एक दो दोस्त बनाए एंड देन वो छूट जाते थे जैसे ही पापा की पोस्टिंग आती थी. तो आई डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स. So I was very studious उस टाइम पे. I used to study a lot. And but yeah, I did not read और कोई books. I used to study syllabus का ही books. And हमेशा वही करती रहती थी. मम्मा was my best friend उस टाइम पे. मैं मम्मी से ज्यादातर बात किया करती थी. And you won't believe, मम्मी मेरे सारे कपड़े चूज किया करती थी. मम्मी मेरे लिए सब करती थी. मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी. मैं और कुछ भी नहीं करती थी. अब कोई फ्रेंड्स वेंड्स नहीं था तो कहीं बाहर जाने के कोई शौक नहीं थे. 12th तक मैं ऐसी थी. तो जैसे ही मैं एआईटी में आई, एआईटी में आई हैड काफी डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे से काफी अलग थे. मतलब मैं इंट्रोवर्ट अपना पर्दा लगा के, मैं पता क्या करती थी, जब मैं आई थी ना तो मैं अपना पर्दा लगा लिया करती थी और मैं पढ़ती थी पर्दे के अंदर, ठीक है. और तो Right. मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त आते थे और वो ऐसे मजाक उड़ा के जाते थे, ये क्या कर रही है, चल निकल यहाँ से. और वो निकाल के ले जाते थे मुझे कि चल हम यहाँ घूमने चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट था इसमें कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बनाने में, कि बाहर जाओ, ये चीजें करो, वो चीजें करो. मतलब यू शुड नॉट ओनली स्टडी, यू शुड डू अदर थिंग्स एज वेल. थोड़ा बिगाड़ना मे बी उनके सेंस में, आई थिंक दैट डिड गुड टू मी, कि मुझे समझ आया कि भाई और भी चीजें करनी चाहिए. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुई. बट तब भी आई वुड से कि आई डिड नॉट हैव इतना, मतलब I did not explore it now, other things. Like I used to see people. I would like to take examples maybe. I do not know if you guys know. I know Ankita Negi from my batch, Pari. They used to do a lot of things. Nitika, मतलब वो लोग डिबेट वगैरह करते थे, खेलते थे, एंड काफी काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे. बट आई डिड नॉट डू सच थिंग्स. मतलब मैंने ना कभी डिबेट किया, ना डांस किया, ना ये सब किया. मुझे लगता था करना चाहिए बट आई डू नॉट नो कि वो अंदर से क्या चीज थी. शायद वो इंट्रोवर्ट प्रिया कहीं पे थी जो नहीं कर पा रही थी वो वाली चीजें. बट Right. 100. आई हैड टू डू डू दोस थिंग्स, बट आई डिड नॉट. आई डू नॉट नो व्हाई. मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ आता कि मैंने क्यों एक ट्राई नहीं मारा कुछ और चीजें करने का जो लोग करते थे. एंड आई यूज्ड टू एडमायर देम कि यार कितना अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, और सारी चीजें भी कर रहे हैं. बट हाँ, आई डिड नॉट.
बट हाँ, I was an extrovert at least AIT तक. जब मैं AIT से निकली and I joined Sapient, तब मैं IT में घुस गई थी और मैं IT में काम कर रही थी. तो कुछ टाइम बाद I started seeing things कि ट्रैवल करना चाहिए, बुक्स भी पढ़ना चाहिए, एंड आई ऑल्सो हैड दिस थिंग कि मुझे ना एनजीओ स्टार्ट करना है. मुझे बहुत पहले से था, आई वाज वेरी एम्पैथेटिक बचपन से. मतलब मुझे कोई सैड होता है ना तो मुझे देखा नहीं जाता है. एंड अगर कोई बच्चा बेगर है और या पढ़ नहीं पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, मैं रो देती थी. ठीक है, मैं हमेशा से इतनी Right. एम्पैथेटिक थी और इतनी सेंटी थी. बट मैं कॉलेज में आई थिंक मैं शायद इसलिए वाली चीज नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता था पैसे चाहिए ये सब चीजें करने के लिए, और दूसरी चीज मैं तब खुल नहीं पाई थी कि मुझे ये सब चीजें भी करनी चाहिए. जब मैं बाहर आई, जब मैं काम वाम करने लगी, तो आई वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट जिससे मैं कुछ चीजें स्टार्ट कर सकती. तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर एनजीओज. फिर कुछ टाइम बाद मैंने क्या किया, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था किसी का ठीक ठाक, और काफी सारे एनजीओ ना ऐसे थे जिनका इंटरव्यू प्रोसेस था, काफी सारी चीजें थी और टाइम ले रहा था. तो मैंने क्या किया कि ना मैंने अपने ही सोसाइटी में विकास नाम का एक बच्चा था. तो वो मेरी ग्रोसरी शॉप में काम किया था करता था सोसाइटी में. तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट डू यू डू एंड वेयर इज योर फादर, व्हाई डोंट यू स्टडी, यू आर सो यंग. सो ही सेड दीदी विकास मेरा नाम है एंड मेरी मम्मी मेड का काम करती है एंड पापा की डेथ हो गई कुछ टाइम पहले. आई यूज्ड टू स्टडी इन 7th क्लास उससे पहले, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. तो फिर मुझे लगा कि यार अगर मुझे एनजीओ में ही काम करना है, मतलब ये मेरे आसपास की चीजें हैं जो भी मैं सुधार सकती हूँ, मतलब आसपास वाले लोगों की हेल्प कर सकती हूँ. तो आई स्टार्टेड टीचिंग विकास उस टाइम पे. और विकास का मैंने थोड़े दिन 4-5 महीने अपने घर पे ही पढ़ाया. मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से आ जाती थी 5-6 बजे तक, एंड देन आई यूज्ड टू टीच विकास एवरी डे. आई आई थिंक आई टॉट हिम फॉर 4-5 months. एंड देन मैंने अपने बॉस से बात किया कि मैं एक बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, आप प्लीज मतलब आप हेल्प कर सकोगे उसमें. तो इसे हाँ क्यों नहीं. एंड देन मैंने उसकी मम्मी से बात किया कि मुझे विकास को और आगे पढ़ाना है क्योंकि अच्छा बच्चा है पढ़ने में. और फिर उसकी मम्मी अग्री की. फिर मैंने उसका एक जगह एडमिशन करा दिया एंड मेरे कलीग्स और बॉस की हेल्प से उसका फी पे करना शुरू कर दिया. ही वाज माय फर्स्ट किड. ही इज माय फर्स्ट किड एक्चुअली. एंड अभी after 6 years, yeah, he's working. He's working in a really nice company, Elite Aircon. I do not know if you guys know Elite Wow. Aircon. He's working there. He just passed 12th this year. Due to some reasons, he couldn't join college. But yeah, he's working and he's earning a decent amount. He's earning, I think, 17 or 18. And he's pretty happy. And उसकी mummy is also Right. happy. तो उसने एक बहुत ही amazing सी चीज बोली मुझे कि दीदी जो उस समय की जॉब में और इस जॉब में जो डिफरेंस है ना, वो ये है कि उस समय ना मैं किसी को चाय देके आता था, अब कोई मेरे लिए चाय लेके आता है. Right, मतलब right, right. It must have इतना felt so, अच्छा so था good. ना. आई Yeah. नो इट फेल्ट सो गुड, सो गुड. तो जब मैंने विकास को पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसके कुछ टाइम बाद ही 4-5 महीने बाद 3-4 महीने बाद मैंने कुछ मेड्स को भी पढ़ाना शुरू कर दिया. 2 मेड्स थी, बहुत ही प्यारी सी. वो ना इंग्लिश सीखना चाहती थी अपने आगे की जिंदगी के लिए. तो मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया एंड देन उनकी भी पढ़ाई बहुत सही होती थी. जब मैं विकास को पढ़ाती थी उसके कुछ टाइम बाद मैं इन हाउसमेट्स को पढ़ाया करती थी. अभी मैं उनसे कांटेक्ट में, कभी कभी बात होती है तो दे टेल मी कि अब हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वी कैन साइन. दे कुडंट साइन एट दैट टाइम, अब दे कैन साइन, दे कैन डू थिंग्स. एंड कुछ टाइम बाद फिर मुझे एआईडी का रिप्लाई आ गया, जिसके साथ मैंने एनजीओ में काम करना शुरू किया. एआईडी इज एन एनजीओ, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट. सो दे gave me a school. They got me introduced to this school, Pragati, जो सेक्टर 5 गुड़गांव में गुड़गांव के आसपास है. एंड उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे काम कर सकती हो. देन आई स्टार्टेड वर्किंग वहाँ पे. एंड मतलब कुछ चीजें फिर मुझे ना वो वाली चीजें समझ आने लगी कि भाई एनजीओ में काम कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, और मुझे यही चीज करनी थी बिकॉज वो काफी हैप्पीनेस देने लगी एंड काफी चीजें होने लगी. वहां पे जितने स्लम्स के बच्चे थे वो आते थे. स्टार्टिंग में इट वाज थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब स्लम्स के बच्चे होते हैं ना, वो ना इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते. मतलब जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं तो हमें पुश करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो ये होगा, पढ़ लोगे तो ये होगा. वहां के बच्चे क्या करते हैं कि Right, right, right. उनके पेरेंट्स ध्यान तो देते नहीं है.
तो वो कोई गुटखा खा रहा है, कोई ऐसे ही घूम रहा है, कोई मतलब एक छोटा बच्चा, मैंने 1 साल का सॉरी फर्स्ट क्लास का बच्चा देखा है, आई थिंक व्हाट ही मस्ट बी 6-7 इयर्स, वो बीड़ी पी रहा था। दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऐसा क्यों है। तो मैं पहले अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी कि आई यूज्ड टू क्राई छोटी छोटी चीजों पे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों इस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों इसके माँ बाप कुछ नहीं कर पा रहे। 4 बहन भाई हैं, मम्मी पापा यूज्ड टू ड्रिंक एवरी डे एंड मम्मी वाज अ मेड उसकी। तो 4 बच्चे थे, उसकी मम्मी कोई ख्याल रख नहीं पाती थी और वो ऐसे ही घूमता रहता था। देन हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट की कि बच्चों को पहले हम बताएंगे कि भाई क्यों तुम्हें आना चाहिए, और उन्हें थोड़ा सा वेट देंगे हम लोग, रोज उन्हें कोई बिस्किट्स कुछ दूध वगैरह देने लगे कि Right. ताकि वो आए। Curiosity. हाँ, Yeah. ताकि वो सबसे पहले तो आए। जब तक तुम Yeah. आओगे नहीं तो हम सिखाएंगे कैसे, तो सबसे पहले तो उनको बुलाने हाँ, के लिए कुछ चीजें देने लगे कि भाई आओ हाँ. ये करो, फिर उन्हें उसी में पढ़ाने वढ़ाने लगे। फिर मैं क्या करने लगी कि मैं हर वीकेंड जाती थी, हर वीकेंड मैं सैटरडे जाती थी एंड आई यूज्ड टू गेट थोड़ा सा, कभी रसना ले जाती थी, कभी नमकीन ले जाती थी, कभी मिठाइयाँ ले जाती थी, फिर स्टेशनरी के आइटम्स ले जाने लगी। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा, मैंने क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, दिवाली पार्टी, क्रिसमस पार्टी, एंड So आई by आस्क्ड this पीपल time की you हेल्प। are working with AID only, right? By this time, हाँ हाँ हाँ, AID के आई साथ वॉज काम वर्किंग कर रहे विद एआईडी, आई वॉज वर्किंग विद हो. एआईडी। Okay. मैंने तब तक अपना एनजीओ स्टार्ट किया था, मैंने अपना एनजीओ 2 साल पहले ही स्टार्ट किया। आई गॉट इट रजिस्टर्ड हाँ. नन्हे ख्वाब, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। वैसे मैं काम तो काफी पहले से कर रही थी, आई वाज स्पॉन्सरिंग किड्स मेरे थ्रू ही, दैट वाज नॉट थ्रू Okay. एआईडी। दैट वाज मतलब मैंने अपने फ्रेंड से पूछना, मैंने एक्चुअली जब मैं Your ये friend पोस्ट circles, right? हाँ हाँ Hmm. हाँ, जब मैं ये पोस्ट वोस्ट डालने लगी कि मैं एनजीओ में काम करती हूँ, तो लोगों Yeah. के मुझे पिंग आने लगे कि सॉरी, दे वांट टू स्पॉन्सर किड्स। Right. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम एक और चीज कर सकते हैं, इन बच्चों को पढ़ा तो रही हैं, हम इनको मतलब क्योंकि हम एक किंडरगार्टन एजुकेशन, तो ये सिस्टम क्या होता है, हम लोग सपोर्ट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, किंडरगार्टन एजुकेशन देते हैं एंड देन उन्हें एक ऐसे एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा देते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में एडमिशन हो जाए उनका, और वो एक फॉर्मल स्कूल में करवाते हैं। तो अगर तुम फॉर्मल स्कूल में भेज ही रहे हो उन्हें, तो फीस तो रिक्वायर्ड होगी, और कुछ पेरेंट तो नहीं Right. दे पाते थे फीस। तो जो Mm-hmm. ये स्पॉन्सर्स आने लगे, तो मैं उनसे पैसे लेके फिर यहाँ पे फीस देने लगी डायरेक्टली, या तो प्रिंसिपल के अकाउंट में, या मतलब ऐसी होने लगा कि वो स्पॉन्सर करने लगे। तो जब ये सारी चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू हैव अ प्रॉपर अकाउंट, अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैंने, मेरी बहन भी इसमें काफी इन्वॉल्व हो गई थी। She lives in Pune and she also started doing stuff like this. मेरे साथ ही she started helping me. Then we decided that we should have a proper NGO, proper account, so that we have proper things to maintain it. And अभी क्योंकि उस समय तो एक ही बच्चा था, एक दो बच्चे थे जिनको मैं हम लोग स्पॉन्सर कर पा रहे Right. थे। अभी Mm-hmm. there are 25 around 25 kids. तो अगर तुम 24-25 किड्स को स्पॉन्सर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने अकाउंट से लेके फिर वहां दूं या प्रिंसिपल अकाउंट में डायरेक्टली करूं। Right. तो Right. एनजीओ के थ्रू होता है, तो इट्स लोगों को भी विश्वास होता है कि हाँ सही जगह जा रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई Right. स्टार्टेड माय ओन एनजीओ। वरना अगर मैं एआईडी वाज डूइंग गुड, वरना मुझे शायद स्टार्ट करने की वरना मैं शायद नहीं करती। बट हाँ, आई Right. रियलाइज कि मुझे करना है, और मुझे और सिटीज में भी पहुंचना है। मतलब वंस आई एम गुड विद द पार्ट आई एम डूइंग हियर, आई वुड लाइक टू आस्क पीपल कि अगर वो किसी और सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आई वांट ये और जगह भी हो, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन गुड़गांव, जहाँ बच्चे कर सकते हैं बट बच्चे कर नहीं पाते। मतलब ये काफी जगहों की प्रॉब्लम है कि पुणे में, मे बी नॉर्थ ईस्ट, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ ये सब करना चाहते हैं बच्चे, वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पेरेंट्स नहीं है जो पढ़ाना चाहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इश्यूज। तो यार इसलिए नन्हे ख्वाब वाज So, लॉन्च्ड। And ma'am, and after you started, I mean, you told us the struggles before starting that. And after you started, what changed? I mean, you thought that you need to start this to structure everything that. And what happened after you started? I mean, what kind of support did you get? And how did you manage to get your funds after that once you registered your NGO? या सो मतलब उसके साथ ना कुछ चीजें चेंज हो गई, कुछ चीजें आई थिंक अभी भी होंगी, क्योंकि इट्स नॉट वेरी ओल्ड, इट्स न्यू ओनली।
तो अकाउंट हमारा कुछ टाइम पहले ही बना है, मतलब कुछ टाइम हो गया तभी बना है, रजिस्टर पहले हो गया था, पैन कार्ड वगैरह मिल गया था, तो लोगों को ये लगने लगा। तो मैं अब क्या कर सकते हैं, पहले ना मैं ऐसा होता था कि अगर कोई मुझे पूछता है कि तुम्हारा है एंड तुम्हारे अकाउंट डिटेल्स हैं, तो मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ती थी। अभी क्या होता है, मैं अपने एनजीओ के अकाउंट डिटेल्स देती हूँ एंड आई कैन शो देम माय वेबसाइट। आई हैव अ वेबसाइट, प्रॉपर वेबसाइट, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हम लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं एंड हम लोग क्या प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाले हैं, वेयर यू कैन हेल्प। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो गया कि लोग जानते हैं कि नन्हे ख्वाब एक एंटिटी है जो प्रिया के नाम पे, प्रिया एंड कोमल के नाम पे, कोमल इज माय सिस्टर्स नेम, प्रिया एंड कोमल के नाम पे, एंड यू कैन कांटेक्ट देम। मतलब अगर सोचो ना, तुम बता रहे हो जैसे ऋषु नमन को कि प्रिया मैम है जिनके नाम पे नन्हे ख्वाब है, नन्हे ख्वाब को वो मतलब नन्हे ख्वाब उनके नाम पे है और वही सब कुछ करती है। तो आई थिंक नमन विल बिलीव यू मोर अगर तुम मुझे बोलोगे कि प्रिया काम करती है, प्रिया मैम काम करती है आईडी में एंड वॉलंटियर करती है, Right. तब मे बी थोड़ा सा इचक आ सकता है कि उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, Yeah. थोड़ा सा इचक आ 100%. सकता Yeah. है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर तुम खुद का करो ना, तो ऐसा होता है कि तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हो, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी कि Yeah. ये सब चीजें कर रहे हो, Proper ये सब medium. चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मीडियम है। And responsibility then lies with you, na? So people can ट्रू be ट्रू sure. ट्रू ट्रू एंड यार मेरा मतलब मेरा सपना थोड़ा सा बड़ा ही है, मतलब मुझे थोड़ा सा बड़ा ही करना था। मतलब आई स्टार्टेड विद वन किड एंड जब तुम्हें ये वाली खुशी मिलने लगती है, जब तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलने लगती है ना कि भाई ये भी करना है। डू यू नो बट पलक मंचिल, शी इज अ सिंगर बॉलीवुड में, ठीक है, काफी अच्छी Yes. सिंगर है So यार। nice. Yes. Yeah, I Yes. really Yes. like her and she is amazing. I really like her क्योंकि उसकी because of उसकी humanitarian things की वजह से। So जब वो छोटी थी, I think she was just 8-9 years old, जब उसने एक बच्चे के लिए, वो गाती काफी अच्छा थी तब भी, तो उसने एक बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू किया था उसके हार्ट ऑपरेशन के लिए। तो जब उसने एक बच्चे का किया ना, तो वो बोलती है कि उसको इतनी खुशी होने लगी कि शी थॉट कि एक बच्चे से इतनी खुशी हो रही है तो और बच्चों से कितनी खुशी होगी। देन उसके उसके भाई के साथ 100%. मिलके, हाँ, उसने अपने भाई के साथ मिलके कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी चीजें करना, इधर उधर गाना शुरू कर दिया। एंड नाउ आई थिंक शी हैज हेल्प्ड ऑपरेटिंग मे बी मोर देन 1000 किड्स, एंड उसको हर एक ऑपरेशन के लिए एक डॉल मिलती है एंड शी हैज अ God. बिग रूम जिसमें बहुत सारी डॉल्स हैं। आई रियली लाइक दैट। मतलब वो वाली खुशी है कि तुम जब एक कर लेते हो ना, जैसे विकास अभी नौकरी कर रहा है, तो वो इतनी खुशी है ना, इतनी बड़ी खुशी है ना। उसकी मम्मी, तुम्हें पता है उसकी मम्मी से जब मैं बात करती हूँ ना कभी भी फोन पे, तो उसकी मम्मी ये बोलती है, बेटा मेरी तो ना तू ही भगवान है। एंड आई कीप टेलिंग हर कि प्लीज डोंट डू दैट, आप मुझसे बहुत बड़ी हो एंड प्लीज ऐसे मत करो, बट शी कीप्स डूइंग दैट कि आप ही मेरी भगवान हो, जो किया है आपने ही किया है और कभी किसी ने नहीं किया है। मतलब इट मेक्स Yes. यू फील बहुत अच्छा। सो दैट्स व्हाई Yeah, मतलब मेरा and शायद I सपना भी I'm बड़ा हो even गया। thinking कि what if every one of us, even if we teach one kid, if even if we take care of one kid around us who is not privileged, or who has not got access to schools, it will be so, I mean, it will be a so better place to live in. Because I mean, there are 125 crore people in India, even more than that. And even if we are 10 lakh IT engineers and people like us, अगर हम एक किड को भी पढ़ाना शुरू कर दे, it will be so nice. So विशु, you actually said a very nice thing. It's true, पता है, मतलब मैं तो बोलती हूँ चलो सब नहीं, मतलब 50% लोग भी एक बच्चे को, और अगर तुम पढ़ा भी yeah, नहीं सकते ना, चलो मान लिया तुम पढ़ा भी नहीं सकते, प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो कि, यार आई हैव सीन इट अराउंड एंड इट्स वेरी सैड कि तुम उससे काम भी करवा रहे हो। ठीक है, मेरी एक बच्ची है जिसको मैंने कुछ टाइम पहले ही पढ़ाना शुरू किया है, वो बताती है कि वो मेड का काम करती थी। हम ओके, चलो 14 ईयर्स के बाद अलाउड है मेड का काम करना, अगर पेरेंट्स के सिचुएशंस वगैरह ठीक नहीं है, नॉर्मल काम, मतलब नॉट फैक्ट्री वर्क। अगर तुम काम भी करवा रहे हो, फाइन, तुम काम करवा रहे हो यार, बच्चा समझ के काम कराओ ना। तुम सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक काम करा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो? और उसके बाद भी वो बच्ची बोली कि मैं पढ़ूंगी दीदी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक ऑनलाइन ट्यूटर उसके लिए रख दिया कि भाई तुम 1 घंटा निकाल लो दिन में एंड उससे पढ़ो। बट वो बोलती है कि उसकी मैडम उसे तभी बुलाती है जब वो कॉल पे पढ़ रही होती है, वीडियो कॉल पे। मुझे इतना बुरा लगने लगा कि तुम इतना बुरा कैसे कर सकते हो? मतलब अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो प्लीज कुछ बुरा मत करो। मेरा ये कहना है कि फाइन, तुम अच्छा नहीं करना चाहते, बुरा भी मत करो। Getting over. right, Ma'am, right, so 100%. there's one question I want to ask. So every coin has like two sides. So how do you, first of all, how do you approach these kids? So you go to these kids and ask them to come to your NGO and join your NGO, or they
is it some type of advertisement or some type of word of mouth कि आपके पास वो खुद से आते हैं? Is it that case? Which case is it? कि आप जाते हो उनके पास और they come to you? And to add to that, I think you forgot to mention your vision. आपने बताया था कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं. So we want to hear that after you answer this question. Yeah, sure. I would like to tell you that. तो Yes. तो क्या होता है नमन, इसमें ना AID का, आई वुड लाइक टू थैंक AID इसमें, तो कि AID ने मुझे वो फ्लोर दिया जहाँ पे मैं ये सब कर पाऊँ, जहाँ से मैं ये सब कुछ सीख पाऊँ. मेरे स्कूल का नाम मतलब स्कूल जहाँ पे है वहाँ पे स्लम एरिया ही है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब पेरेंट्स के साथ ही पेरेंट्स हैं और बच्चे रहते हैं. इट्स नॉट एन ऑर्फनेज काइंड ऑफ थिंग, इट्स मतलब ठीक ठाक स्लम एरिया. तो वहाँ पे जब लोग बच्चे, मैंने तुम्हें बताया ना कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम लोग बच्चों को बिस्किट्स देना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने. 2 घंटे पढ़ाते थे, ज्यादा नहीं. या मुझे लगता है अगर तुम 2 घंटे भी पढ़ा दो ना एक बच्चे को, बहुत है बच्चे के लिए, बहुत ज्यादा है अगर तुम अच्छे से पढ़ाओ दो Exactly. घंटे. Yeah. तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो 100%. ना Yes. सिर्फ, हाँ, हम लोगों ने पहले तो सिर्फ बिस्किट्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था कि भाई बिस्किट्स देंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे. तो बच्चे ना वो देख के कि चीज मिल रही है. और हम लोग जब बच्चे होते थे, हम लोगों को कितना मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा Yeah. जैसे ही ऑफिस से आते थे, मैं दौड़ के जाती थी कि भाई कुछ लाए हैं बैग में कि नहीं लाए. वो चीज, कोई भी एक छोटी सी चीज, कोई चॉकलेट, Right. हम लोगों के टाइम पे तो टॉफी होती थी यार, कोई टॉफी, कोई भी चीज. तो बच्चों के लिए वैसा ही है कि कुछ मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो लोग आते हैं. फिर कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं, तो हमारा जो स्कूल है ना, मतलब उसके आसपास हम लोग बोल के रखते हैं, लोगों को पता है कि एक स्कूल है जहाँ पे ये सब होता है. तो कभी कभी हमें कुछ अदर, मतलब जैसे जो हमारा फॉर्मल स्कूल है उसके प्रिंसिपल कॉल कर देते हैं कि ऐसा एक बच्चा है जिसको जरूरत है. या तो मान लो कि मुझे कोई जानता है, वो कॉल कर देता है कि भाई ऐसा बच्चा है जिसको जरूरत है. एंड और मेरी मैम भी है, एक मैम है जो फुल टाइम पढ़ाती है बच्चों को हर दिन. वो भी पूछती रहती है अराउंड कि ऐसा है, आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा सकते हो. और अगर वो लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई नहीं पढ़ाना चाहता तो हम लोग उसके पास जाते हैं. हम लोग कभी कभी पेरेंट्स टीचर मीट रखते हैं कि पेरेंट्स को बताते हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, मतलब क्या रीजन क्या है. सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार हैं, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है. तो आप क्यों नहीं चाहते हो कि बच्चा आए, बच्चा पढ़े, मतलब क्यों चाहते हो कि वो मजदूरी करे. मतलब पता है उनका माइंडसेट क्या है. अभी भी मैं कल ही एक बच्ची से लड़ रही थी कि वो इतनी अच्छी पढ़ने में थी बच्ची, 16-17 साल की बच्ची होगी, इतनी अच्छी पढ़ने में थी. और वो ना, उसने छोड़ दिया क्योंकि उसकी शादी के लिए बोलने लगे उसके माँ बाप, और बोला कि भाई ये मजदूरी करेगी, उससे 8-9 हजार कमा लेगी, आपके स्कूल में आके क्या करेगी, कुछ पैसे वैसे तो मिलते नहीं है, और अगर पढ़ाई करना शुरू करेगी उसमें भी 4-5 साल लग जाएंगे, दिहाड़ी करके हमें अभी पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना करें. Right. उनसे इतना, मतलब इतनी बहस हुई मेरी, इतनी लड़ाई हुई, बट कुछ लोग मानते नहीं है. बट हाँ, कुछ लोग मान भी जाते हैं. सो आई हैव सम पीपल अभी जो एक्चुअली करना चाहते हैं. बट इसमें ना थोड़ा सा ना माँ बाप को भी होता है. हम लोग जितना भी कोशिश कर लें, मतलब माँ बाप अगर बिल्कुल ठान के बैठे होना है ना कि नहीं कराएंगे, तो वो फिर बहुत नहीं मुश्किल हो जाता है, हम फिर वो नहीं कराते हैं. बट हाँ, कुछ लोग होते हैं जो, Right. जिनको थोड़ा सा मान पुश की जरूरत होती है और वो मान Right. जाते हैं. मैम तो हम ऑन लोगों दिस ने ये पॉइंट करना शुरू किया. सो अगर आप जैसे 10 बच्चे अगर आपके एनजीओ में हैं तो दैट इज नॉट द केस. आई गेस दिस इज नॉट द केस कि मतलब 10 के 10 बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या फिर बिकॉज देयर आर फ्यू जो बच्चे आते हैं वो उनका ऐसा भी रहता होगा नहीं यार चलो वहाँ पे मिल रही है चीज या खाने को मिल रहा है तो इसलिए आ रहे हैं और वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई में. बिकॉज आई डोंट थिंक मतलब ऐसे सब लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ाई में जितने भी बच्चे हैं. तो फिर हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ कि मतलब आप हाउ डू यू मोटिवेट देम टू ओके हाउ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यू विल गेट दिस एंड आप बनोगे कुछ बड़ोगे बिकॉज उस लेवल पे ये सब चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों के लेवल पे कि आपको आगे चल के इसमें फायदा होगा. ये जो Yes. छोटे बच्चे Basically. होते हैं ना, हाँ, यू वर सेइंग दैट, Yeah. सेइंग समथिंग. Basically. Uh, मतलब बच्चों में ना सीखने की वो जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी डालना. You must have learned कि how you do How that. to learn. हाँ, ट्रू. एक तो बच्चों के साथ ना इतना पेशेंस रिक्वायर्ड होता है ना, इतना Yeah. पेशेंस रिक्वायर्ड होता है ना. पहले तो मैं कर नहीं पाती थी बिल्कुल, मैं पहले बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी, अब तो समझ आ गया तो करने लगी हूँ. तो यार बच्चों के साथ क्या होता है ना, जब हम लोग मतलब हम लोग को तो याद भी नहीं है जब हम बच्चे थे तो हम कैसे थे. पर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मतलब पहले तो उन्हें बुलाओ कि भाई तुम पहले तो आके बैठो, और मतलब हम चीज देंगे, तुम्हें चीजें मतलब ठीक लगेंगी, थोड़ा टाइम बैठो आके.
जब वो आने लगे ना तो हम लोगों ने फिर कुछ कुछ छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट करवा दिया, जैसे ABCD के गाने गवाना, ABCD गाने गा रहे हैं, 1 2 3 के गाने गा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक ना थोड़ा सा हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये वाली कमी लगती थी जो मैं अपने स्कूल में नहीं करने देती, कि मैं सिर्फ उन्हें पढ़ाना नहीं चाहती, मतलब दे शुड डू अदर थिंग्स एज वेल। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उतनी जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हम लोग और भी Yeah, चीजें 100%. कराते हैं। जैसे हम लोग ना क्या करते हैं कि कभी कभी उन्हें फुटबॉल खिलाते हैं कि भाई चलो तुम आज खेलो, तुम आज बैडमिंटन खेलो, तुम आज लिगोस खेलो, तुम आज पजल्स बनाओ, ये करो वो करो, जिंगा ला के रखा हुआ है मैंने कि ये खेलो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मतलब कभी कभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग बनाने से कितनी सारी चीजें समझ आती हैं तुम्हें। स्टोरी बुक अगर तुम नहीं भी पढ़ सकते हो तो उसकी पिक्चर्स देखो। तो हम लोग ये वाली चीजें करना शुरू किया। जब तुम थोड़ी सी चीजें ना बच्चों के लायक करने लगते हो ना, बच्चों को अगर क्यूरोसिटी होने लगती है, मजा आने लगता है ना, और वो टाइम लगता है थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट एक दिन का चीज, वो ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेता है, पेशेंस लेता है। मतलब मेरी टीचर आई थिंक वो बहुत अच्छे से करती है। मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम नॉट उसमें अभी टीचर वाले उसमें, बट हाँ आई डू टीच। बट हाँ मेरी टीचर ये सब बहुत अच्छे से करती है। बट हम लोग ये सारी चीजें बहुत रखते हैं इसमें कि तुम आके खेलो भी, ये भी करो वो भी करो, बॉल से खेलो, पढ़ने के साथ खेलो, कंट्रीज के नाम जानो। तुम उसमें जो पजल्स नहीं आते कंट्रीज के, कॉन्टिनेंट्स के, तुम्हें पता है मेरे Yeah. छोटे छोटे बच्चों को, तुम गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, 5th क्लास के बच्चों को नहीं बताऊंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को, 6 7 ईयर्स के बच्चों को 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम याद है। उन्हें पता है नरेंद्र मोदी कौन है, Yeah. उन्हें पता है कि स्टेट्स, मतलब वो एटलीस्ट कुछ स्टेट्स का नाम बता देंगे, कुछ कंट्रीज का नाम बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया उन्हें पता है, वो मैप पे बता पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। तो वी गॉट दिस डन थोड़ा सा चीजों को बढ़ा बढ़ा के, कि भाई अगर तुम ये पढ़ोगे ना तो कभी चॉकलेट दे देते थे कि ये फायदा होगा, फिर कभी गाना गवा देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। आई थिंक वो वाली चीजें हेल्प करती है हम लोग को करने में। और एक और चीज आई Yeah. थिंक Now, हेल्प करती है, वो ना कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ना मैं अभी तो थोड़ा कोरोना वोरोना चल रहा है तो मैं कम जाती हूँ, 1 महीने में एक बार जाती हूँ, कुछ करना होता है तब जाते, कुछ देना वेना होता है 1 2 महीने में एक बार। बट पहले मैं क्या करती थी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं हर सैटरडे जाती थी, कभी कभी मैं संडे भी जाती थी, ताकि मैं उनके साथ थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। तो मैं भी जाती थी और मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती थी। वैसे तो बच्चे हैं समझते नहीं है, तो मैंने ये समझाने की कोशिश करती थी कि आप लोग बड़ी जगह जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, आप लोग बड़े घरों में रहना चाहते हो। मैं एक बार उन्हें अपने घर लेके गई थी। जो बड़े बड़े बच्चे हैं ना वो समझने लगते हैं, जब जैसे छोटा बच्चा है 5 6 साल का वो नहीं समझेगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, 9 10 11 12 आई वुड से, उन्हें थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि कुछ कुछ चीजों का एजुकेशन का क्या फायदा हो सकता है आगे। सोचो ना, yeah. अगर तुम दिहाड़ी कर रहे हो, मतलब बच्चों को से भी दिहाड़ी करना शुरू करवा देते हैं लोग, या दिहाड़ी में क्या करेगा बच्चा, मतलब कैसी जिंदगी होती है बच्चे की, जब वो देखता है ना कि दूसरा बच्चा कैसे जी रहा है और मैं मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब हम ये डिफरेंस बच्चों को बताना चाहते हैं, दिखाते हैं कभी कभी, तो उन्हें थोड़ा बहुत तो समझ आने लगा। और अभी मतलब आई वुड से इस पॉइंट पे 6 साल बाद अभी काफी चीजें हमें समझ आने लगी हैं, और अब बच्चे आते हैं, खुद से ही आते हैं। हम लोग इतना कुछ मतलब ऐसे फोर्स नहीं करते आने के लिए, वो खुद आते हैं बच्चे की दीदी हमें पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। कभी कभी होता है मोटिवेशन कम हो जाती है, बट जब थोड़ी सी डांट लगा दो ना, या मैं ना प्यार भी कर सकती हूँ, अब डांट लगाना भी सीख लिया। पहले डांट नहीं लगा पाती थी, पर मैं बिल्कुल डांट नहीं लगा। 100%. Yes. हाँ And बिल्कुल नहीं, that मैंने is important, I think, बच्चों के लिए, because बहुत बार नहीं बिल्कुल सीखते बच्चे. नहीं, यार आगे चल सोचो के ना, फिर अगर कुछ ऐसा सीन आया कि मतलब डांट वाला, तो फिर एकदम दे शुड नो हाउ टू हैंडल इट। बिल्कुल बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। तो विकास है ना, उसके पापा नहीं है, तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ये किसी से नहीं डरता है, ये सिर्फ तुझसे डरता है। तो विकास ना कभी ऐसा हो नहीं सकता कि विकास मेरा फोन ना उठाए, और अगर फोन नहीं उठाएगा तो वो दोबारा कॉल करेगा। वो अपनी मम्मी के साथ नहीं करता, अगर मैं एक बार डांट लगा के बोल देती हूँ वो सुन लेता है। उसकी मम्मी बोलती है वो और किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ मुझसे डरता है। तो Yeah. ये वाली चीजें भी करनी पड़ती है तुम्हें, मतलब बच्चे ना प्यार से तो मानते हैं, बट थोड़ा सा तुम्हें और भी चीजें करनी पड़ती है उनको मनाने के, उनको मनवाने के लिए थोड़ी वार्निंग्स वगैरह देनी पड़ती है कुछ चीजों And से। ma'am, that आपने इतने सारा टाइम स्पेंड किया है किड्स के साथ, व्हाट डू यू थिंक कि जैसे वी हैव आवर स्कूल सिस्टम्स, लाइक टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, एंड यू टोल्ड अस कि यू हैव योर किड्स, आपने ये चीजें इंक्लूड की हैं स्कूल में. सो व्हाट डू यू थिंक कि मॉडर्न स्कूल सिस्टम, सपोज वी गेट टू डिजाइन द न्यू स्कूल, जो न्यू एरा का स्कूल है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें,
like the things you mentioned, right? So can you tell us about कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, and where the Indian education अभी जो है वो कहाँ पे लैक करता है? यार मतलब मैं तो अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, पता है, मतलब अगर मुझे पहले मेरी ना लाइब्रेरी टीचर होती थी, कुछ नहीं बताती थी ठीक है, मुझे चंपक के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, मतलब और सारे स्कूल्स में देखती हूँ, बट यार मतलब माय फादर वाज अ वेरी नॉर्मल गाय, मतलब आर्मी में थे, मेरे दादू ने उनका आर्मी में करवा दिया था, एंड माय मदर वाज अ होम मेकर, तो वी डिड नॉट हैव इतना ज्यादा वी डिड नॉट नो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चों का था जिनके पापा काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, दे न्यू कि ये चीजें होती हैं, खेलना होता है, लॉन टेनिस खेलना होता है, बास्केटबॉल खेल सकते हो, तुम बुक्स पढ़ सकते हो, तुम और भी चीजें कर सकते हो। मेरा वो मतलब मैंने कभी वो सब नहीं देखा था, तो मुझे नहीं पता था, तो मैं अपने बच्चों का भी अपने जैसा देखती हूँ। ज्यादातर शायद बच्चे मेरे जैसे ही हैं जिन्होंने नहीं देखा है, एक्चुअली मुझसे भी लोअर, जिन्होंने ये सब नहीं देखा है कि क्या क्या चीजें और हो सकते हैं पढ़ाई के अलावा। तो और वाली चीजें पता है स्कूल ही कर सकता है, तो स्कूल से मुझे लगता है कि ना यार ये वाली चीजें होनी चाहिए। मतलब डजेंट मैटर कि तुम्हारी सोसाइटी जिस जगह तुम हो, तुम्हारे पापा के दोस्त वोस्त बताएं, उससे बेटर है कि स्कूल में ये वाली चीजें हो, कि हर स्कूल इन सब चीजों पे थोड़ा और ध्यान दे, पढ़ाई के अलावा इन सब चीजों पे ध्यान दे। बच्चे खेलने से भी सीखते हैं, बच्चे डांस से भी सीखते हैं, बच्चे थोड़ा सा 100%. घूम के भी सीखते हैं। मतलब मेरे बच्चे का मुझे लगता है खेलने से ज्यादा सीखते हैं। मतलब जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि गाना गा के ये सारी चीजें बताओ, तो वो ज्यादा सीखते हैं, उन्हें मजा आता है ये सब चीजें करने में। 100%. लेगोस अरेंज करो, पजल्स से बताओ, स्टेट्स बताओ, ऐसे करके ऐसे करके। Yeah. तो थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग अगर बनाया जाएगा ना चीजों को, तो बच्चे सीखेंगे। बट हमारा मुझे लगता है काफी बोरिंग हो जाती है ना जब, तो यार नहीं सीख पाते। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग, व्हिच आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग। दिल्ली में कुछ schools हैं, they are doing really nice. I do not know if you have heard, if you have read this book. There is a book called Toto Chain. It's one of my favorites. तो Toto Chain में क्या होता है, there is this guy, वो ना एक स्कूल बनाता है, और बड़े सही सा स्कूल होता है, रेलगाड़ी होती है, कुछ डिब्बे बना स्कूल जैसे बनाए होते हैं, उसमें कोई पीरियड सेंस नहीं होता। बच्चे जब चाहे साइंस सीख सकते हैं, बच्चे जब चाहे सिंगिंग सीख सकते हैं, जब चाहे डांस कर सकते हैं, जब चाहे मैथ्स कर सकते हैं। और टीचर्स हैं डिफरेंट काइंड की, डिफरेंट मतलब डिफरेंट चीजें पढ़ाने के लिए। बट बच्चों पे है कि वो क्या करना चाहिए। तो जो उनका प्रिंसिपल था ना, वो किसी चीज के लिए रोकता नहीं था उन्हें। एक बच्ची क्या करती है, गड्ढा खोदने लगती है, उसका कुछ खो जाता है, वो खोदने लगती है, करने लगती है कुछ चीजें कि मेरा तो खो गया, मुझे तो ढूंढना है। बट वो रोकता नहीं है उसे, बोलता है करो, वो कर करके सीखेगी कि भाई उसे क्या करना चाहिए आगे। तो मुझे लगता है ऐसा अगर स्कूल हो, तो it will really benefit the society and the kids as well. मतलब kids, of course kids को तो करेगा I भी, mean, और so society को भी। have you got any plans to open up new, I mean, more bigger schools? Of course, and like I told you, I have थोड़े से बड़े dreams अभी. I would Yeah, love to just have tell us, such a just tell school. us Yeah, about. I would love to So, have yeah, such a school. क्या? we want to touch upon that, like on your dreams. So, at what extent do you think कि आपको कहाँ तक जाना है, and what is your, target goals? And now, how जो do you भी manage funds? We see your posts on Facebook, and we know people send a lot of gifts and help. So how do you manage your funds now? And आपके जो dreams हैं, and how do you plan to, I mean, get funds for that also? Okay, so I would like to answer पहले वो ड्रीम्स वाला, ठीक है। तो है स्कूल वाले ड्रीम्स, बट आई थिंक अभी भी आई नीड थोड़ा सा और एक्सपीरियंस। आई हैव गुड एक्सपीरियंस, बट आई नीड थोड़ा और एक्सपीरियंस, थोड़े और लोग। अभी मैंने ऑफिशियल वॉलंटियर्स रखना शुरू कर दिया है, बट हाँ आई थिंक थोड़ा और मुझे एक्सपोजर चाहिए कुछ चीज़ों में, तब मे बी आई बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्कूल खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और कहाँ खोलना है, और कैसे और चीज़ें हो सकती है। फंड का मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता, बिकॉज आई हैव अभी काफी बड़ा नेटवर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल। और अब क्योंकि द एनजीओ इज रजिस्टर्ड, द अकाउंट इज मेड, तो आई कैन अप्लाई, आई कैन आस्क कॉर्पोरेट्स एज वेल टू इन्वेस्ट। बट उससे पहले आई थिंक मुझे भी उस पॉइंट पे होना पड़ेगा कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं अकेले चला सकती हूँ। क्योंकि एक इंसान का ना ऐसा होना बहुत जरूरी होता है जो बहुत पैशनेट है इस चीज को लेके। अगर मैं नहीं होती ना, तो मैं नहीं कर पाती। मैंने लोगों को देखा है, वो 1 साल आते थे और फिर छोड़ देते थे। मतलब 1 साल का बहुत जोश चढ़ा कि सोसाइटी चेंज करनी है, ये कर देना है, वो कर देना है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर छोड़ देते हैं यार लोग। मतलब मैं तो तुम लोगों को भी बोलूंगी, तुम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया, डू नॉट लीव इट। लोग, मुझे लगता है लोगों में यही थोड़ा सा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगता है कि इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, व्हाई नॉट
व्हाई नॉट कीप डूइंग इट। और जब तुम आगे बढ़ते जाते हो ना तो तुम्हें और भी चीजें सीखने को मिलता है। क्योंकि जब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया था तब मुझे और भी चीजें समझ आने लगी कि मुझे क्या क्या चीजें और करनी चाहिए। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी मेरी भी इंग्लिश वाज ओके, इट वाज नॉट दैट गुड, मैं ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पाती थी। अभी आई ट्राई कि मैं अच्छे से लिख सकूं और मैं लिख पाती हूँ अभी। जब मैं नहीं कर पाती थी ना, जब मैं बच्चों को सिखा रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था मुझे भी नहीं आती कितनी सारी चीजें। तो मैंने तब ना कुछ चीजें रीड करना शुरू किया और उस चीज से थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और फिर मेरी एक फ्रेंड मोटिवेटेड मी कि यार तुझे बुक्स भी पढ़नी चाहिए। तो तब मैंने आई थिंक 4-5 साल मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। एंड अब आई हैव अ वेरी बिग, इफ यू कैन सी पीछे एक इतनी Yeah, बड़ी लाइब्रेरी है। maybe you can gift us some of your favorite books. Of course, anytime, but you have to return it. I'm very possessive about my Yes. books. But हाँ, books में like the person I am, तुम लोगों ने पता नहीं suggest मतलब guess कर लिया होगा। मेरी favorite book is it's The Moment of Left by Melinda Gates. यार मेलिंडा गेट्स को लोग ज्यादा जानते बिल गेट्स की वजह से हैं, but that woman has done a lot of work, a lot of work. Especially for जो India. मेलिंडा In terms of social service, right? yeah, that's why I love her. Yeah. Yeah, She has done a and lot of work, lot. and I think really that's why the foundation is named after her only. राइट। तो ये Melinda उसकी Gates बुक में Foundation. काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि वो ना इंट्रोवर्ट है इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं आ पाती। वो लोगों से बात करती है बट इतना नहीं कर पाती। बट शी हैज डन बहुत सारी चीजें इंडिया में, मतलब अफ्रीका में, इतनी ऐसी जगह जगह उन लोगों ने चीजें लाई हुई हैं। मतलब अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे कैसा बनना है, आई वुड नॉट वांट टू बी बिल गेट्स वाइफ का ऐसा मेलिंडा गेट्स, बट हाँ आई वुड लाइक टू बी लाइक मेलिंडा गेट्स। शी हैज डन अमेजिंग वर्क फॉर वुमेन। मतलब वो बंदी मुझे काफी चीजों में इंस्पायर करती है। मतलब उसकी वजह से मुझे काफी सारे आइडियाज आते हैं अपने एनजीओ में करने के लिए। फर्स्ट इज दैट, सेकंड इज मिशेल ओबामा का बिकमिंग, आई लव दैट। आई थिंक उसके बाद आई वुड से आई लाइक काइट रनर खालिद हुसैनी की By एक बुक है। Khalid Hosseini. या मेरी वो I've read this. फर्स्ट, Yes. या मैंने वो फर्स्ट बुक पढ़ी थी जिसके बाद मैंने अपनी एक्चुअल रीडिंग स्टार्ट की थी। मतलब उस बुक ने मुझे बोला था भाई तुम्हें रीड करना चाहिए। And that is a good book to start. That's a good fiction. या अ वेरी सैड बुक बट वेरी नाइस। Yeah. उसके बाद आई वुड से नाइटिंगेल। इट्स अबाउट मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे बहुत वो लगता है कि कैसे चीजें हुई थी, क्यों लोग ऐसे हो गए थे हॉलोकॉस्ट में। मतलब लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द फिल्म, मतलब Yes, अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा I है। have even seen one picture of yours in Poland. Poland. हाँ, वो I think concentration camp के बाहर वाला Auschwitz मैं में I वहां think इसलिए गई थी, Auschwitz. मैं वहां उस बुक Auschwitz. की वजह से ही गई थी। मैं नाइटिंगेल की वजह से वहां गई थी। आई वांटेड टू सी कि And to tell you, मैंने वो picture देखा and I have seen this World War II जो series है. It covers everything जो हिटलर ने किया and everything. And मैंने वो जगह का नाम देखा and the place itself has associated that वो negativity and that fear in me. कि वो देखते ही I realized that वो जगह. एंड यू थिंक कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड वहां पे ना एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है, कि यू शुड नो द हिस्ट्री सो दैट यू डोंट रिपीट इट। तो 100. इसीलिए भी मुझे लगता है जानना जरूरी है कि क्या हुआ है। और वो तुम कैसे जान सकते हो यार, इतने बड़े बड़े लोगों ने इतनी सारी बुक्स। सोचो ना, राइटर अपनी पूरी जिंदगी में एक बुक लिखता है। एक बुक सबसे ज्यादा फेमस होती है नॉर्मली उसकी, ठीक है, वैसे तो काफी सारी लिख सकता है बट एक बुक उसकी सबसे ज्यादा फेमस होती है, फर्स्ट बुक या सेकंड में भी, जो भी हो। बट उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना सारा डेटा कलेक्ट किया होगा जब उसने वो बनाया होगा, जब उसने लिखा होगा। सोचो तुम उसके 100%. पूरे लाइफ टाइम का वर्क पढ़ रहे हो, तो Exactly. it's Yes. something amazing, right? And That's I it. read this quote somewhere like a normal person lives one life and a reader lives 1,000 lives. ट्रू ट्रू। मतलब मैं जब भी कहीं बाहर होती हूँ मैं हमेशा अपने पास एक बुक रखती हूँ। मुझे वेटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का भी वेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं Yes. हमेशा अपने पास बुक रखती हूँ कि भाई लेट तो लोग हो ही जाता है, कभी कोई रीजन, कभी So कोई all the रीजन। time is productive time for you, no matter यार where are you. आई ट्राई टू, मतलब समटाइम्स आई एम आल्सो नॉट दैट प्रोडक्टिव। मुझे, मैं भी इंसान हूँ ना, चाहिए होता है कुछ कुछ चीजें। Right, बट हाँ आई right. ट्राई कि ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव। बट हाँ मैं ये सबको बोलती हूँ कि अपने पास बुक हमेशा रखनी चाहिए और बुक्स रीड करना चाहिए। और अगर तुम बुक्स नहीं करना चाहते रीड, फाइन, आई अंडरस्टैंड इफ यू डोंट वांट टू रीड ऐसे बुक्स, you can read maybe blogs. There are so many things available abhi to online. There are so Yeah, many and we cannot articles.
I think let's not make reading like कि बहुत बड़ा hype है, we have to complete this book. हाँ Even if you read one page or even if you read a I mean blog, एक पेज का blog भी पढ़ते हैं, that's even reading. I mean बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जानना, इट्स अबाउट जानना जरूरी like है। curiosity, yeah. बिल्कुल बिल्कुल, वो बुक तुम्हें पता है, तुम एक बुक पढ़ते हो ना, इट्स अ चेन, तुम एक बुक पढ़ोगे, फिर तुम दूसरी पढ़ोगे, फिर तुम Perfect. तीसरी पढ़ोगे, फिर तुम 100%. चौथी पढ़ोगे। 100%. 100%. मुझे लगता है मैं ना अपनी बुक्स के बारे में बताती रह सकती हूँ, देयर आर सो मेनी बुक्स, मतलब आई विल गिव यू माय गुडरीड्स maybe का लिस्ट। we'll have another call to talk just on books. आई गिव यू माय Then गुडरीड्स it का will लिस्ट, पता suffice. है। They're on Yeah. just traveling. So, so we can just. It is very hard to sum up everything in this one podcast right now. We should मेरे को ये लग रहा है अभी. So, like before ending it, like there are few questions. Like how AITs, I see a lot of AITs who काफी ज़्यादा interested होते हैं कि मतलब NGOs. Rishu himself has worked as a like leader in NSS club at AIT. So there are a lot of students, they want to contribute. Even there are alumni, they want to contribute to this good cause. So how they can get collaborated and how they can like, is there some way कि मतलब हम लोग घर से पढ़ा सकते हैं remotely, they can help, or do they have to come to Delhi for a month? So because they have these 1 month का break होता है जो आप बोल रहे हो traveling के लिए, so these people they want to work for some NGO or something. So how they can connect Yes, with you? and we have people in NSS club as well. So maybe if you want volunteers from them, so Yeah, what that kind of help really, we can provide? Yeah. yeah, that'll be helpful actually. So पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार, I know कि I'm working. If you want to apply, you can. But दो तीन चीजें हैं इसमें कि मैं ये भी चाहती हूँ कि ऑनलाइन, पता है, थोड़ी सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं उन बच्चों के लिए, बिकॉज दे हैव फोन, एक लैपटॉप भी है, बट कितने सारे एक लैपटॉप पे पढ़ेंगे। आई ट्राई डूइंग Right, इट, बट right, इट्स right, नॉट right, दैट right, विजिबल। तो जब मैं किसी right. को बोलती हूँ ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ, मतलब कि वॉलंटियर्स, आई नो आई डू वांट वॉलंटियर्स, बट आई कैन असाइन डिफरेंट एडमिन वर्क्स, बट इफ यू वांट टू टीच, मैंने ये किसी और को भी सजेस्ट किया था कि इफ यू हैव समबडी जो तुम्हारे आसपास हो, देयर आर सो मेनी पीपल यार जो तुम्हारे आसपास ही होते हैं, यू कैन मे बी फॉर्म अ ग्रुप एंड यू कैन स्टार्ट टीचिंग। अगर तुम लोग पुणे में स्टार्ट करना चाहते हो या वेयर यू गाइस आर, स्टार्ट समथिंग, आई विल हेल्प यू देयर। ठीक है, मतलब Oh, फंडिंग में हेल्प चाहिए, perfect. स्टेशनरी में हेल्प चाहिए, किसी और जगह हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे मतलब मेरे एनजीओ का नाम चाहिए या कुछ और चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट, क्योंकि ये यहाँ के लिए बेस्ड नहीं है सिर्फ, और जगह के लिए भी बेस्ड है। और इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट यहाँ से, तो ऑफ कोर्स मतलब कुछ चीजों पे यू कैन स्टार्ट, यू कैन टेक केयर ऑफ सम किड्स, उनकी मतलब उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, उन्हें कुछ चीजों मैथ्स वगैरह में हेल्प कर सकते हो। यार टीचिंग का पता है प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अगर तुम आसपास पढ़ा रहे हो ना, तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर दूर है ना, तो मान लो तुम लोगों की भी अपनी जॉब है, कॉलेज वाले बच्चे तो कर सकते हैं, बट तुम लोगों की अपनी जॉब है, तुम लोग नहीं कर पाओगे। कॉलेज वाले बच्चों Yeah. के पास ज्यादा टाइम होता है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन टीच, बट टीच करने के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा परसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि भाई हर दिन पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा तुम पे डिपेंडेंट है। Right, उससे right, right. उससे ज्यादा आई सजेस्ट कि ट्राई, अगर तुम आसपास में ही कुछ कर सकते हो, Mhm. और अगर वो नहीं कर पाते, अगर उसमें थोड़ा सा डर लगता है, तो आस्क मी, आई कैन गेट यू इंट्रोड्यूस टू सम थिंग्स, या एडमिन वर्क दे सकती हूँ, या बच्चों के से कनेक्ट करवा सकती हूँ, या मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, इफ And यू वांट टू maybe टीच मे बी डांस। what I feel is mentor की तरह भी काम they बिल्कुल can work बिल्कुल with you. बिल्कुल, यू कैन वर्क एज अ Yeah. मेंटर, बट या यू हैव टू अप्लाई इन नन्हे को आपकी वेबसाइट पे, यू कैन कांटेक्ट मी समटाइम कि ये कर रहे हैं। या तो एक और चीज की, अगर इफ यू वांट टू डू समथिंग, मतलब मान लो अभी जो मैं क्रिसमस का ये ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी एज वेल। मुझे Yeah. पोस्ट शेयर करना है, कभी ये करना है, कभी ऐड करनी है चीजें। यू कैन हैव समथिंग खुद से भी कि हमें ये करना है, वी वांट टू मे बी डू अ डोनेशन ड्राइव or something like Yeah. that. We want to have a teaching week जिसमें हम एक, अभी मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, एक जनरल नॉलेज क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। यू कैन मे बी मेक अ सिलेबस फॉर इट, या फर्स्ट क्लास के बच्चों का यू कैन मेक अ सिलेबस कि भाई ये पढ़ाना चाहिए। यू गाइस कैन हेल्प मी देयर, ये चीजें हैं, यहाँ पे हेल्प कर सकते हो आप लोग। या स्पॉन्सरिंग के लिए अगर मुझे लोग चाहिए, तो मुझे लोग भी चाहिए होते हैं जो लोगों को पूछ पाए कि अगर इफ यू वांट टू स्पॉन्सर सम किड्स, हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि हम लोग लोगों को रीच आउट कर पाए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे यू कैन वर्क, यू जस्ट हैव टू टेल मी। How much does it take, ma'am? Sorry to interrupt. So, how much does it take to sponsor a kid if he or she is in like first to third grade? And how is it like grade wise, or is it like okay for all students it's the same amount? If No, you no, it's want, if grade wise. some, It's grade wise. okay, so how is it like? Can you just is Yeah, there yeah, some sure. information available on website, or would you be?
Like, That's a very good point. I'll put that on my website. Very good point. Thank you. So अभी तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ. फर्स्ट से फिफ्थ तक का इज अराउंड 15 से 20 के बीच में. मतलब 15 एंड इट्स एवरीथिंग इंक्लूडेड. ट्यूशन फीस होती है, उनके बुक्स वगैरह होती हैं, एंड एवरी मंथ का फीस होता है. 15 से 20 के बीच में हो जाता है. एंड उससे जब सबसे ज्यादा इशू आने लगता है जब बच्चा 10th के ऊपर जाता है. जब 10th के ऊपर जाता है तो उसकी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है. मतलब अभी देयर इज Yeah. दिस गर्ल निशा, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल. और उसकी मम्मी एक लेबरर है, और उसके पापा का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, 5-6 साल पहले. ही इज मेंटली रिटार्डेड, ही कैन नॉट वर्क. और 3 बच्चे उनके. एंड मतलब बच्चे तीनों इतने अच्छे हैं. निशा इज द बेस्ट किड एवर. मतलब वो बच्ची घर का काम करती है, क्योंकि उसकी मम्मी काम पे जाती है, तो वो घर का काम करती है, फिर वो अपनी पढ़ाई करती है, फिर वो 5 बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती है, फिर वो अपने Wow. बहन भाई का भी ख्याल रखती है, और समटाइम्स वो खाना भी बनाती है. और वो फर्स्ट भी आती है 10th क्लास में. 10th Oh क्लास God. में है, ठीक है. दिस बच्ची इज सो गुड. तो उसकी अभी हम लोग मेरी एक फ्रेंड है, शी इज स्पॉन्सरिंग उसका फीस. इट्स 1700 पर मंथ. और स्टार्ट में एक एडमिशन फीस होता है विच वॉज 10,000. और कुछ ट्यूशन फीस है, बट अभी वो ट्यूशन नहीं रही, तो ट्यूशन फीस नहीं है. तो उस केस में थोड़ा सा बढ़ जाता है, अराउंड 30 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में, अगर वो 10th के ऊपर बच्चा है. वैसे इट्स 15 से 20 के बीच में. इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस. इट्स नॉट मच. 15-20 is not a big amount. Why I'm asking Yeah. you this is because there even I am as I because we want to do some investments, so, sort of. So sometimes I feel if we do these type of investments, so it is ultimately beneficial for us if we look at that point of view. So like 5,000 a month, if we are giving like 20,000 शायद एक साथ ना दे पाए बच्चे लोग या फिर जो True, true, freshers true. होते हैं like us. But what we can do is we can like pitch in like 3,000 a month or 2,000 a month, and slowly we can. I'm stopping you there. I'm stopping you there. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैं लोगों को ये सजेस्ट नहीं करती. नॉर्मली पता है क्या होता है, फीस होती है 900. तो जितनी जो सबसे स्टार्टिंग की एडमिशन फीस होती है, वो मैं एक साथ लोगों से कलेक्ट कर लेती हूँ. वो कुछ 1 लाख के आसपास होती है सारे बच्चों की. ठीक है, Okay. एडमिशन फीस. तो वो मैं क्या करती हूँ, वो मैं क्राउड फंडिंग करती हूँ, कि मैं लोगों से बोल देती हूँ, कोई 2,000 दे देता है, कोई 3,000 दे देता है, कोई 5,000, पर वो साल में एक बार होता है. ठीक Okay. है. फिर क्या करती हूँ मैं, हर महीने की फीस लोग अपने हिसाब से देते हैं. तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हर महीने फीस देते हैं. वो होती Okay. है 900 फॉर फर्स्ट से और 10 तक. वो 900 से 1,000 तक है. दैट्स नॉट मच. और जो उससे ऊपर बच्चे हैं उनके लिए 1,700. तो इट्स नॉट 3,000 एज वेल. इट्स जस्ट कॉस्ट ऑफ योर 2 pizzas मे बी. 900 इज कॉस्ट ऑफ 2 pizzas. So it's just Yes. that. It's not Yes. 3,000 as well. That makes sense. 3,000 तुम्हें सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो वो भी नहीं है. It's just 900,000 per month. और उसमें सोचो तुम मतलब एक बच्चे की जिंदगी चेंज कर रहे हो यार. सोचो उसकी जनरेशंस चेंज हो जाएंगी. Yes. Maybe we can cut one meal which we are having outside and pay for But that. that is not even necessary for us, Rishu, because we are doing like totally fine with this because No, maybe I mean, college kids I can do just that. just a way of Talking looking, हाँ just a हाँ way हाँ of हाँ. looking at ट्रू things, ट्रू. just a if way we of talk मैं looking at about लोगों को college, बताती हूँ एक्चुअली. ऋषि यू आर राइट. मैं लोगों को कभी कभी बोलती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि यार तुम्हारे एक महीने का एक पिज्जा है यार. और लोग एक्चुअली तुम्हें पता है मान भी जाते हैं. मतलब Yes. अभी जो मैंने ये वाली चीज की ना, क्रिसमस पार्टी वाली, यू सॉ द गिफ्ट्स. नो, इतने सारे गिफ्ट्स थे यार. एआईटी के लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया. मतलब मैंने एलवेनाई ग्रुप पे डाला था. देयर आर सो मेनी बैचमेट्स ऑफ माइन जिन लोगों ने गिफ्ट दिए हैं. और किसी किसी ने ज्यादा नहीं दिया. किसी ने 2-3 च्यवनप्राश दिए हैं, किसी ने मैगी पैकेट्स दिए हैं, किसी ने कुछ बिस्किट्स दिए हैं. इट्स नॉट मच, बट छोटा छोटा करके इतना सारा हो गया है. Exactly. That's what. And say, suppose an alumni is watching this talk and he wants to sponsor or he wants to get in touch. So, what would be the best place to get in touch with you? Either contact me on Nanne Khwab, or you can directly contact me on Facebook as well. We have a Facebook page of Nanne Khwab. We have an Insta page of Nanne Khwab. Message everywhere. If you want to ask me about traveling as well, message me on Trippy Girl. I'll answer that. Maybe मैं उस समय ना answer Okay. कर पाऊँ, but I'll answer उसके बाद कुछ time तक. I do that. Right. People Right. do ask. और Right. मैं तो तुम सबको, जितने भी लोग पढ़ने वाले भी है ना, कॉलेज वाले भी, यार मतलब अभी ना मैंने तुम लोगों को बताया ना कि अभी एक बच्ची थी जो मुझसे पूछ रही थी कि मैम सब शादी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, सबके सब ये कर रहे हैं. तो मतलब आपका क्या ख्याल है इस पे? यार सब कुछ जरूरी है जिंदगी में, पार्टनर भी जरूरी है,
बट अपने आप को एक्सप्लोर करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। अपने आप को जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे, किसी और इंसान के साथ रह कैसे पाओगे? तो अपने आप को 100%, एक्सप्लोर yeah, करोगे तभी तो रह पाओगे किसी और के साथ। अपने आप को जानना जरूरी है। 100%. या Yes, मतलब एक बुक and कैफे है, yeah, go on, go on, go on, go on. या एक बुक कैफे है। Yes, तो मैं क्या करती थी, मैं जब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, मैं थोड़ा कोडिंग में कुछ और चीजें सीखना चाह रही थी, तो मैं क्या क्या करती हूँ, मैं एक बुक कैफे जाती हूँ। वहां पे बुक्स हैं हर जगह और वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं। मैं वहां जाके 4-5 घंटे बैठती थी और बुक्स पढ़ती थी और काम करती थी। इट वाज सो नाइस। एक तो अकेला टाइम, ऊपर से तुम अपना काम कर रहे हो। ऐसा yeah, इफ यू कैन, it has been on my dream. I mean, I've seen a lot of book cafes मैंने search किया बहुत बार. It has been a dream, but now that we have started working, उसके बाद से this COVID happened and we are at home, so I've not बट get होम पे got भी this यार, opportunity. मतलब होम पे भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग। देखो ना, मैंने ये अपना सेटअप कर रखा है और मुझे Right, बहुत अच्छा right. लगता है। मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ और चीजें करती रहती हूँ। इट्स रियली नाइस। अब तुम लोग तो यार, मैं तुम लोगों को देखती हूँ ना, यू गाइस आर सो यंग। ओह माय गॉड, सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ थिंग्स टू And डू, so many not, things to I do. think we feel like you are younger than us. I mean, seeing this excitement about everything. नहीं Yes, यार, और भी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। मतलब we know. एक्चुअली पता है, मेरे रिलेटिव्स ऐसा ही करते हैं। मेरी मम्मी को ना कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि भाई बड़ी हो गई है, 28 की हो गई है। ऑल माय फ्रेंड्स आर मैरिड, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर मैरिड। तो मेरी मम्मी को बुरा लगता है कि क्या कर रही है, ये कर रही है, उसका तो बच्चा पैदा हो गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। देन आई टेल हर, आपने मेरे जैसा खुश देखा है किसी को? देखा है 100%, हमने? 100%. Yes, and this constant smile, I mean, it's really nice. या मतलब मुझे किसी चीज का डिपेंड नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से रेज किया और मैंने ना अपने लाइफ में सब कुछ किया जो मुझे करना था। मुझे स्विमिंग सीखनी थी, मैंने स्विमिंग सीखी। मुझे लॉन टेनिस सीखना था, मैंने लॉन टेनिस सीखा। बास्केटबॉल नहीं खेलती थी बचपन में, हाइट छोटी रह गई उसकी वजह से। तो मैंने बास्केटबॉल भी अकेले खेला है। Right, मैं बास्केटबॉल right, अकेले खेलती थी। right. तो I think Naman, हमने तो पूछ लिए almost सारे क्वेश्चन पूछ लिए. हाँ. If you have any message for people like us at AIT who is watching this show, first to fourth year, or even Any pass out, alumni or anyone, right please. us, yes, yeah, या you can end this with that. थैंक यू गाइस सो मच फॉर इनवाइटिंग मी Well, एंड thank you for coming, ma'am. Thank you so much. Ma'am. It it was was such. an It was amazing amazing talk. talking to you. Yes, Yeah, same yeah, here. for me as well. It was amazing. मतलब यार, मुझे अपनी स्टोरीज बताने में वैसे ही बहुत मजा आता है, ठीक है? तो ऐसे बात करते हुए, अपने कॉलेज से बात करते हुए, तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो हाँ, Now we will at least teach a kid who is around us, and 100%. second we will surely plan a trip outside of India and let you know. please do. And if teaching needs any help, if you want to teach, if you want to start something, in fact ये AIT के लिए भी है, because आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है as NSS, and then I would like to be connected to them so that I can Yeah, I'll help them. You sure, can surely, start surely, something वहाँ surely. पे, मतलब एक छोटा सा Yes, start yes, करो, yes, yes. कुछ बच्चों We से will start connect करो। you with NSS. We'll make sure we are connected with them, हाँ हाँ and हाँ, then you कुछ can छोटे talk to से, them directly, बिल्कुल right? बिल्कुल छोटे से ग्रुप से स्टार्ट करो, कुछ बच्चों से पढ़ाना Yeah, स्टार्ट करो अपने आसपास। एंड देन आई 100%. कैन गिव द फंड्स, अगर रिक्वायरमेंट है आई कैन गिव द स्टेशनरी। मतलब मैं अपने Sure. एनजीओ के थ्रू चीजें कर सकती हूँ, बट हाँ, आई वुड नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल जो पैशनेट हो इसके लिए। Yes, सो even यू वांट टू डू इट। I'd like to tell you, I'd like to tell you, I was in NSS. Naman ने जैसे बताया, we were working on, I mean, lot of things, but we are not very focused like you. I mean, हम school जाते थे, orphanage जाते थे, blind school जाते थे. We did a lot of things, but we are not very much focused on that. तो एक हमें blind school था हमारे पास. We used to visit that regularly. So ऐसे बहुत सारे projects थे, but I think कि now when they will connect you, we can have more effective or and focused Ma'am, goals. it could be more of a, I don't know what's your idea and what's your take on this, but just a suggestion. What could be done is we can talk to director of AIT and as a part of NSS, because all the mentors and all the sponsors, like you will be always there to guide and help. So as a part of Nane Khwab, so we can just start it over there and with few kids for like Yes, uh, perfect, 100%.
And I That think is there a are a lot of very good people at idea, bigger, Naman and Rishu. big, Very good idea. I yeah, would love to do that. In fact, I wanted to do that क्योंकि मैं कॉलेज से हूँ तो मैं बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझती हूँ. yeah, एंड 100%. तो मेरे पास ना एक चीज है बस बोलने के लिए, पता है इस पे कि सोचो तुम एनएस में उस पे तुमने एनएस पे काम किया, ठीक है, पर तुम कितने बच्चों का नाम जानते हो उसमें से, तुमने कितने बच्चों को एक्चुअल में मतलब एक दिन के लिए खुश किया, 2 दिन के लिए खुश किया, बट कितने बच्चों को एक्चुअली Point. चेंज किया. Yes. मैं 30 बच्चों के नाम Yes. जानती हूँ जिनको मैं That's चेंज the कर रही हूँ. that's the question I always used to ask when I was at NSS. Like we are visiting this kids. I mean, हम festival पे visit करते थे या Independence Day पे or whatever. But I always ask this question कि what result we are bringing True. into their lives. Exactly. ट्रू, यही मैं एनजीओ से पूछती हूँ, पता है. और हाँ, या तुम that's एक बच्चे को करो, पता है, मैं नहीं बोलती कि तुम 10 बच्चे को करो, मैंने स्टार्ट एक ही बच्चे से किया था. फिर मतलब एक बच्चे को करो पर उसको अच्छे से करो, तुम सारे बच्चों को मत करो. और हम भी सारे बच्चों को कर नहीं 100%. पाते यार. 10 बच्चे आते हैं हम 5 को, जैसा आई थिंक नमन बोल भी रहा था, 10 बच्चे आते हैं हम 5 को ही कर Yes. पाते हैं, बट हाँ, अच्छे yes. से करेंगे, जो करेंगे अच्छे से करेंगे. तो आई थिंक 100%. नमन ने जो आइडिया दिया, इनफैक्ट रिशु एज वेल, कि इफ यू गाइस कैन गेट मी कनेक्टेड वैसे, मतलब एज नन्हे को आप, मैं आइडियाज दे सकती हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप दे सकती हूँ, मतलब मैं और भी चीजें कर सकती हूँ. आई कैन गेट पीपल अराउंड, इनफैक्ट एलुमनाइज कैन हेल्प. 100%. तो Sure, काफी 100%. सारे, और उन लोगों के पास तो I टाइम think this ज्यादा can होता be है यार done. I 5 think बच्चों के this पास. is This very can be exciting. done. Why? Yeah, exactly. Because this can be Exactly. done. And ma'am, what would be the biggest takeaway from that? What I can think of. Let's just not think about like how students will be benefited from them. कि एक तो पहली बात आप जो बोल रहे थे ना, मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट है पास में था मेरा, तो दैट विल बी ना, वही हॉस्टल है तो बच्चे जाएंगे, दे टीच देम. बिल्कुल बिल्कुल. एंड जो उनकी जब देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएस और जो बाहर जाने के लिए, तो दे नीड सम कॉलम्स इन देयर कि okay how they have worked for someone, or so there are these students also, they want to work for some NGOs. I don't say मतलब goodwill, they want to do that goodwill also, but for it will also benefit them in हाँ, that. इट विल बेनिफिट देम एज वेल यार. मेरे पास लेटर हेड है, मैं एक साइन कर दूंगी और अच्छा लिख दूंगी, तुम लोगों को That is, एमएस में हेल्प हो जाएगा. yes, so Right, that right, is right, that is right, the, right. that is the मतलब that will be like win-win for everyone, and we will I be agree. I so agree. That's a And very good idea. even maybe me and Aman can also help you in this. 100%. If I'm that- totally Please. in this. Please. Yeah, प्लीज डू sure. दैट. दैट विल रियली हेल्प. मतलब ये जो मेरा सपना है ना, थोड़ा सा इधर उधर चीजें पहुंचाने का, थोड़ा अलग अलग सिटीज में चीजें पहुंचाने का, एक एक बच्चा ही रहे कोई बात नहीं, बट अलग अलग सिटीज में Yeah. पहुंचाने का, वो पूरा हो जाएगा. गुड़गांव में तो आई कैन हैंडल अच्छे से, बट आई कैन नॉट Yeah. हैंडल तुम लोगों की जगह पे, राइट. पुणे में आई कैन नॉट हैंडल बिकॉज आई एम नॉट देयर. 100%. Oh, So I mean, we let's have do it. spent We will over connect you to NSS people, and we can talk to the directors, and then we can see. We'll start that. Yeah, and let me know if you guys need any help. In fact, everybody who's watching this, or if you need any help on traveling, books, NGO, maybe anything, just shoot a question. React.js also. Insta pay. Yes. React.js also, yes. Cool. Okay, so I think we are done with almost Yeah, all our yeah. questions, and this was so much fun talking to you, ma'am. And I mean, I'm- I am It was so much amazing. excited to start my traveling journey. I mean, because I was always scared about कि मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, मैं कैसे how will I go to Europe? And now I I think agree. can. I agree. Now you know, right? Yes, and maybe I'll tell this to many other people at AIT. So Yeah, maybe I'll please take do. them Please also. do. And Okay. thank you guys. Thanks for having me. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. If you are an alumni and want to help her with the NGOs she is running, please reach out to her on nannekhwab.in, or you can also directly reach out to her on Facebook or Instagram. And let me tell you, she is the most exciting and interesting person we have interviewed so far. So you have to check this video. Either you are a social worker or an alumni looking to help her in her mission, or you are young and you want to travel the world on low budget. Check out this video.